A very cheerful good morning to all of you, my dear students. We were dealing with the chapter My Childhood, and we were reading about Mr. APJ Abdul Kalam. As I have told you in the previous classes, that it is a chapter from the autobiography, from a part of the autobiography, that is Wings of Fire. It is an extract of that autobiography, you can say, or you can say it is a small, very small part. Some paragraphs are being taken out and constituted as a chapter for you. As the chapter signifies my childhood, obviously it is a childhood time period. It is described about the childhood time period of the author, that is Mr. APJ Abdul Kalam. Till now we have read beta ki Mr. APJ Abdul Kalam belongs to Rameshwaram Tamil family, and he is from a very rule and regulation wise family. His father was very austere parent. His father and mother was like austere type of persons, and we can also say they are very disciplined type of person. His father has not much wealth, not much formal education also, but then also he was very wise. His mother was an ideal helpmate of his father. They were having an ancestral house. They were filled with all the essential luxuries. Again, I'm saying essential luxuries, because his father used to avoid all the inessential comforts which were not needed, which were not required in their houses. He used to avoid that. So at last, we have ended with we have ended our last class by a statement that he was saying कि my childhood was very secure, both in terms of emotions and materialism, materialistic also and emotionally also. His childhood was totally secure, and I've told you the meaning of both the words. Both words का क्या deep sense है मैंने आपको ये भी समझाया था last class में. So till now we have read the basic childhood period, the basic background of the family. We have read about that. Now moving forward from the paragraph number 3. So beta, we are reading the paragraph number 3. The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on a mosque street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. My brother-in-law, Jalaluddin, would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Now beta, he is telling that it was Second World War time. Second World War का time था, which was broke out in 1939. Second World War start हुई थी. अब हम लोग वर्ल्ड वॉर कभी स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि वॉर कभी बोल के स्टार्ट नहीं होती कि आज से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट है. ठीक है, इट सडनली ब्रोक्स आउट लाइक सम पीपल, सम कंट्रीज विच विच वांट द वॉर. तो वो सडन एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि वॉर स्टार्ट होती है. वॉर कभी टाइम देख के स्टार्ट नहीं होती है. ओके, एंड वन थिंग मोर, इन प्रीवियस टाइम we don't have any like television or these kind of broadcasting things. हम लोग के पास जो सिर्फ एक चीज़ थी, जो न्यूज़पेपर्स, अगर हम कह रहे हैं, तो हम लोग के पास न्यूज़ को पढ़ने के लिए या न्यूज़ ट्रांसफ़र करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी, वो थी न्यूज़पेपर्स. उसके अलावा हम लोग के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो सबके पास हो. लाइक फॉर एग्जांपल टेलीविज़न बहुत लोगों के पास था, लेकिन बहुत सारे लोग थे ऐसे जिनके पास टेलीविज़न नहीं था. बहुत 2-3 लोगों के पास अगर रेडियो है, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास रेडियो नहीं था. तो इट वाज लाइक कि मतलब, और जब वॉर होती है तो वॉर में सबके पास न्यूज़ पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है. ये कंट्री की रिक्वायरमेंट है.
अगर कंट्री में आप है तो ये गवर्नमेंट खुद ऐसा चाहती है, गवर्नमेंट खुद ही ये चीज़ चाहेगी। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ आई टेक एग्जांपल ऑफ कोरोना पैंडमिक, अगर हम अभी एग्जांपल लें, तो गवर्नमेंट खुद ही आपको ऐसे ऐसे सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी जो उसको पता है कि भाई इस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को सब पढ़ते होंगे। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपको सिर्फ सैटेलाइट से न्यूज़ देगी या आपको सिर्फ आईफोन्स पे ही न्यूज़ आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज गवर्नमेंट को पता है कि सबके पास आईफोन नहीं है, तो वो न्यूज़पेपर में भी निकालेगी, टीवी में भी ऐड निकालेगी, और रेडियो में भी उसका ऐड आएगा, एंड देन बहुत सारे आपके चैनल्स में ऐड आएगा। तो ये हर तरीके से वो आपको, गवर्नमेंट का खुद का ये एक इनिशिएशन होता है कि वो आपको हर तरीके से इन्फॉर्म करेगी। इन्फॉर्मेशन देना ये उसका कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एफर्ट होता है हमेशा से ही। तो वॉर के टाइम पे भी ऐसा ही था बेटा, ये गवर्नमेंट का खुद का इनिशिएशन था कि इंफॉर्मेशन हर किसी के पास पहुंचे, और वो काम सिर्फ हो सकता था न्यूज़पेपर के थ्रू। बिकॉज एट दैट टाइम टेलीविजन में भी पता नहीं था, नहीं था, सबके पास शायद था भी नहीं, और बहुत कम लोगों के पास था। रेडियो वगैरह तो आई डोंट नो कि पता नहीं कितने लोगों के पास होगा, एंड और मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, तो न्यूज़पेपर ये कैसा था, जो ये था कि सबके पास होगा, तो इसलिए न्यूज़पेपर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आप ये कह सकते हैं इट वॉज नेक्स्ट टू ऑक्सीजन। ठीक है, नाउ कमिंग टू बेटा, लाइक व्हाट आई वाज रीडिंग इज कि ही इज सेइंग कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 when he was 8 years old. So Second World War broke out, and he's saying he was never able to understand that why tamarind wasn't so demand in the market. पता नहीं अचानक से ऐसा क्यों हुआ था कि tamarind की डिमांड बहुत बढ़ गई थी, and he was not able to understand कि ऐसा क्यों हुआ है. Now if you all can guess it, अगर आप सोच सकते हैं कि क्यों हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, but if you all can not guess it, देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्यों हुआ था ऐसा। एक्चुअली हुआ क्या था बेटा कि टैमरिंड की अगर आपने सीड देखी हो, अगर आपने कभी भी टैमरिंड की सीड देखी हो, तो इट इज़ लिटरली वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होती है टैमरिंड की सीड, एंड इट वर्क्स एज अ बुलेट। अगर आप टैमरिंड सीड को बहुत ही प्रोफेशनली उसको एक शेप दे दें, एक साइज दे दें प्रॉपर, तो it can temporarily work as a bullet. And India was not having such amount of that guns and bullets and ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंडिया के पास नहीं थी। तो आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड, जब फाइनेंशियल कंडीशन लो है तो कुछ ना कुछ ऐसा हमें करना पड़ेगा कि जिससे हमारी वो बुलेट्स की जो नीड है वो पूरी हो जाए। तो टैमरिंड इसका बहुत अच्छा ऑप्शन था। अगर बुलेट्स नहीं हैं तो कम से कम टैमरिंड उसका एक सेकंड ऑप्शन तो बन ही सकता था। तो यहाँ पे टैमरिंड को बुलेट की तरह करता था, इसीलिए टैमरिंड इतना डिमांड में आ गया था। लेकिन एक 8 ईयर के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को, a child of 8 years cannot understand the importance of all these things. वो शायद इतना लॉजिक, इतना डीप लॉजिक नहीं लगा पाएगा, उसको नहीं पता होगा कि ऐसा क्यों होना था। लेकिन पता नहीं क्यों उसके हिसाब से टैमरिंड की सीड की डिमांड बहुत बढ़ गई थी मार्केट में। तो वो क्या किया करता था, व्हाट डज ही डू इज कि ही यूज्ड टू कलेक्ट ऑल द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप इन द मॉस्क स्ट्रीट। ठीक है, लाइक वो सारे सीड को कलेक्ट करके और मॉस्क स्ट्रीट में उसको सेल कर दिया करता था। एंड वन डे कलेक्शन वॉज टोटल अबाउट 1 अन्ना, मतलब टोटल जो 1 डे का पूरा कलेक्शन हुआ करता था वो 1 अन्ना के बराबर हुआ करता था। ओके, अब आगे पढ़ते हैं बेटा, देखिए क्या लिखा हुआ है। माय ब्रदर इन लॉ, ही इज सेइंग कि मेरे ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वो मुझे वॉर के बारे में स्टोरीज बताया करते थे, यानी कि जो भी वॉर में हो रहा है, कहाँ किस दिन क्या अटैक हुआ है, क्या हुआ है, मतलब जो भी उसकी अपडेट्स रहती थी वो उसको दिया करते थे, विच ही वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामणि। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो मुझे स्टोरीज़ बताया करते थे वॉर की, जो कि मैं कभी बाद में दीनामणि में पढ़ लिया करता था।
मतलब स्टोरीज पहले बता दिया करते थे, दीना मनी में तो भाई बाद में प्रिंट होगा, वो तो बाद में देखा जाएगा, तो वो बाद में वो पढ़ता था, लेकिन इस टाइम पे वो स्टोरीज में बता दिया करते थे इसको, क्योंकि वो वहाँ पे वॉर में इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied forces and something like the state of emergency was declared. The first casualty came in the form of suspension of the train halt at Rameswaram station. अच्छा हुआ क्या बेटा कि इनका कहना है कि क्योंकि इनका एरिया एकदम आइसोलेटेड था, मतलब एकदम अलग सा कुछ एरिया था, अलग जगह पे था एरिया, तो इस वजह से इनका एरिया वॉर से इतना अफेक्टेड नहीं था। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी, इफ़ यू आर लाइक परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इलाहाबाद, अगर आप इलाहाबाद में ज़्यादा रहते हैं या अगर आप इलाहाबाद के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो आई मस्ट टेल यू कि जो भी चीज़ें होती हैं उसका इफेक्ट सबसे पहले आप देखते होंगे सिविल लाइन पे पड़ता है। वेदर गुड, वेदर बैड, वेदर प्लस, वेदर माइनस, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वॉट एवर इज हैपनिंग, उसका सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है सिविल लाइन्स पे। कोई मॉल खुलता है, सिविल लाइन्स, कोई कुछ पॉजिटिव हो रहा है, सिविल लाइन्स, रोड बनती है, सिविल लाइन्स, नहीं अगर कुछ खराब हो रहा है तो भी वहाँ सिविल लाइन्स ही इफेक्ट होता है सबसे पहले। तो यहाँ पे इनका कहने का सेंस है कि जो मेन एरियाज होते हैं वो सबसे पहले इफेक्ट होते हैं, लेकिन इनका एरिया एकदम साइड में था। अब जैसे कि फाफामऊ को आप देख लीजिए, फाफामऊ में कोई भी चीज़ होगी तो वो सबसे लास्ट में होगी, ठीक है, क्योंकि वो इतना आइसोलेटेड एरिया है, इतना अलग सा एरिया है, तो वहाँ जाने में ही इन एक जो वर्कर है उसको टाइम लगेगा। तो इनका एरिया भी ऐसे ही आइसोलेटेड था, जिसकी वजह से इनका एरिया वॉर से इतना इफेक्टेड नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इंडिया को भी फोर्स किया गया कि वो अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करें। अलाइड फोर्सेस मतलब बेटा आर्मी फोर्सेस, ठीक है, यहाँ पे आर्मी फोर्सेस से ही मतलब है, तो आर्मी फोर्सेस को वो ज्वाइन करें, ये डिक्लेयर कर दिया गया था। द फर्स्ट कैजुअलिटी, एक फर्स्ट जो कैजुअलिटी आई, कैजुअलिटी मतलब एक जो आप कह सकते हैं कि फोर्स्ड फॉर्म ऑफ सम टास्क, किसी भी टास्क को फोर्सफुली करने का जो ऑर्डर आया, वो आया कि ट्रेन हॉल्ट कर दी जाएगी रामेश्वरम स्टेशन पे। मतलब ट्रेन को अब रुकने नहीं दिया जाएगा रामेश्वरम स्टेशन पे, ट्रेन का रुकना अब बैन हो गया है एट द रामेश्वरम स्टेशन। ये सारी चीज़ें एट द टाइम ऑफ दैट लाइक वर्ल्ड वॉर ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, सो दैट पीपल यूज टू गेट हर्ट, लोगों को बहुत टॉर्चर फील हो। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जिसका कोई मतलब नहीं हुआ करता था, लेकिन सारी चीज़ें हुई करती थी जस्ट बिकॉज कि लोग टॉर्चर हों, लोग बस कुछ किसी न किसी तरीके से उनको कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये सारी चीज़ें किसी न किसी तरीके से लोग किया करते थे। तो ट्रेन का हॉल्ट हो गया भाई, ट्रेन अब रामेश्वरम स्टेशन पर रुकना मना हो गई, बैन कर दिया गया ट्रेन का रुकना। अब क्या हुआ कि न्यूज़पेपर तो आना ज़रूरी था, और न्यूज़पेपर उस समय ट्रेन से ही आता था, तो कैसे आएगा न्यूज़पेपर। लेकिन न्यूज़पेपर को मतलब हर एरिया में पहुंचना भी ज़रूरी था, और ट्रेन वहाँ रुक नहीं रही थी, तो ट्रेन जब रुकेगी नहीं तो कैसे न्यूज़पेपर वहाँ दिया जाएगा। तो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस, आगे देखिए। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन Rameshwaram and Dhanushkodi. That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in the Rameshwaram, to look out for a helping hand to catch the bundles, and if naturally I filled the slot. As if naturally I filled the slot. Samsuddin helped me earn my first wage. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. अच्छा, कुछ ऐसा हुआ कि जो शमसुद्दीन इनके ब्रदर थे, वो उन्होंने ऐसा कुछ प्लान किया कि हम ट्रेन अगर रुकना अलाउड नहीं है तो हम चलती ट्रेन से ही जो न्यूज़पेपर होगा उसको नीचे फेंक देंगे। इस तरीके से कम न्यूज़पेपर पहुंच तो जाएगा, तो न्यूज़पेपर रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में ही कहीं फेंक दिया जाएगा, सो दैट कि कम से कम उस एरिया में न्यूज़पेपर पहुंच जाए, और चलती ट्रेन से ही फेंक दिया जाएगा। अगर ट्रेन रुकने के लिए अलाउड नहीं है तो कम से कम किसी न किसी तरीके से पहुंचेगा तो न्यूज़पेपर। लेकिन इसके लिए उनको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था, और इत्तेफाक से उस टाइम पे मिस्टर APJ अब्दुल कलाम ने वो एक जो हेल्पिंग हैंड वाला पोजीशन था वो फिल किया। तो वो उनके हेल्पिंग हैंड की तरह उन्होंने काम किया और उनकी हेल्प की, और वो हेल्प किया उनका पहला वेज अर्न करने में, पहली सैलरी अर्न करने में।
ओके। लाइक बेटा यहाँ पे मैंने आपको पहले था उनके अगर पहली सेल्फ सैलरी की भी बात की जाए पर डे वेज, ये तो मंथली वेज हो गया, यहाँ से तो मंथली वेज उनको मिलेगा। अगर पर डे वेज की बात की जाए, डेली वर्कर की बात की जाए, तो उन्होंने पहली सैलरी अपनी पर डे के हिसाब से टैमरिंड सीड सेल करके कमाई थी। लेकिन यहाँ पे पर मंथ की बात की जा रही, तो मंथली उन्होंने सैलरी जो कमाई तो वो न्यूज़पेपर सेल करके कमाई। तो अब आज जो कह रहे हैं कि आज हाफ सेंचुरी बाद भी मैं वो प्राउड फील कर सकता हूँ जब मुझे मेरी पहली सैलरी पाने पे हुआ था अपने ऊपर। तो ही वॉज वेरी प्राउड एट दैट टाइम ऑन हिमसेल्फ ओनली। ओके, सो कमिंग टू द फोर्थ पैराग्राफ बेटा, every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by the figures of authority। लिखा हुआ है कि हर बच्चों को कुछ ना कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक मिलती है भाई, सही बात है, और कुछ एनवायरनमेंट से मिलती हैं, कुछ सोशियो इकोनॉमिक वे से मिलती हैं, और कुछ को ट्रेन किया जाता है जो उनके अथॉरिटीज़ होते हैं उनके थ्रू, यानी कि जो भी उनको एक जो लाइक पेरेंट्स हुए या गार्जियंस हुए, कोई भी हुए, तो जो भी उनके साथ दिन भर रह रहा है वो उनको जिस तरीके से ट्रेन करता है उससे भी उनको कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पे अब देखिए इन्होंने अपने बारे में क्या बताया है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। लिखा हुआ है कि मुझे अपने फादर से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन मिला है, और मेरी मदर से गुडनेस, फेथ इन गुडनेस, डीप काइंडनेस, और ये सारी चीज़ें मिली हैं, एंड ऑल द थिंग्स विच आर गुड, तो मुझे वो सारी चीज़ें मिली हैं। एंड सर मुझे ही नहीं, मेरे 3 ब्रदर्स और एक सिस्टर, यानी कि टोटल 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इंक्लूडिंग मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, इतने भाई बहन उनके थे। तो इन सबको वही सेम कह सकते हैं आपकी इन लोगों को वही सेम नॉलेज मिली है, वही सेम इनहेरिटेंस मिली है फ्रॉम देयर पेरेंट्स। नाउ ही इज टेलिंग अबाउट हिज क्लोज फ्रेंड्स। अपने बारे में जब भी आप बताते हैं तो आपके फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में। तो ही इज़ हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फ्रेंड्स इन हिज लाइफ। लेट्स सी हु आर हिज फ्रेंड्स। He's saying, I had 3 close friends in my childhood, Ramananda Shastri, Arvindan and Shiv Prakashan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religion differences and upbringing. लिखा हुआ है कि मेरे 3 फ्रेंड्स थे, अरविंदन, रामानंदा शास्त्री एंड शिव प्रकाशन, तीनों ही हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थे, लेकिन कभी भी हम लोगों के लाइक वेन एवर वी आर इन चाइल्डहुड पीरियड, जब भी हम चाइल्डहुड पीरियड में थे या जब भी हम साथ में थे, जितने भी टाइम हम साथ में थे, कभी भी हम लोगों को अपने में डिफरेंस कभी समझ में नहीं आया। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा कभी कुछ किसी के बीच में बात नहीं हुई, या हमारे आपस में कभी ऐसे कोई मिसकंसेप्शंस नहीं हुए जिसकी वजह से हमें रिलीजियस डिफरेंस या हम लोग आपस में अलग हैं, कुछ डिफरेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता चली। और ये सब सिर्फ किस वजह से हुआ, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी थी। हमारे पेरेंट्स ने हमको ये सारी चीज़ें कभी सिखाई ही नहीं, हमें डिफरेंसेस हमारे बीच में कभी बताए ही नहीं। तो हम लोग हमेशा से ये सोचते आए कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, ना कि ये सोच कर आए हैं कि हम लोग डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट रिलीजन के हैं। तो वी ऑल आर फ्रॉम ओनली फ्रेंड्स व्हेन एवर वी आर टुगेदर अकॉर्डिंग टू हिम। अब देखिए इन्होंने अपने फ्रेंड्स के बारे में बताया बेटा। In fact, Ramananda Shastri was son of Pakshi Lakshmana Shastri, the highest priest of Rameshwaram temple. Later, he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his parents. लिखा हुआ है बेटा कि रामानंद शास्त्री तो पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री का सन था, और उसके फादर हाईएस्ट प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल में। लेटर ऑन उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को ही उन्होंने प्रीस्टहुड दे दी, मतलब उनका बेटा भी रामेश्वरम टेम्पल में ही जाकर प्रीस्ट बना। तो इस तरीके से एक
जैसे कि यहाँ पे बेटा आपको फ्रेंड्स का जॉब करियर भी बताया जा रहा है। तो यहाँ पे पहले फ्रेंड का आपको बता दिया गया है रामनाथा शास्त्री का। उसके फादर लक्ष्मणा शास्त्री थे जो कि हाईएस्ट प्रीस्ट थे। तो उनके बाद उनका बेटा यानी कि रामनाथा शास्त्री ही उस प्रीस्टहुड पे आया। उसने ही टेक ओवर किया और रामेश्वरम टेम्पल का प्रीस्टहुड लेटर ऑन उसी ने संभाला। सो लेट्स सी व्हाट अदर टू फ्रेंड्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड अबाउट. Arvindan went to the business of arranging transport for visiting pilgrims. तो अरविंदन क्या हुआ, उसने बिजनेस संभाला, उसने बिजनेस किया ट्रांसपोर्ट का। जैसे कि कोई भी पिलग्रिमेज के लिए आ रहा है या कोई भी टूरिस्ट आ रहा है तो उसके अरेंजमेंट के लिए, उसके लिए पिलग्रिम का अरेंज करना एंड देन ट्रांसपोर्ट का अरेंज करना, इसका बिजनेस अरविंदन हैंडल किया। और उसके बाद से शिव प्रकाशन ने क्या किया, वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया सदर्न रेलवेज में। तो तीनों अलग ही अलग एरियाज के थे। आपको ओवरऑल एक चीज़ समझाई जा रही है कि एक फ्रेंड केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर इन सदर्न रेलवेज, एक फ्रेंड बिजनेसमैन ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, एक फ्रेंड प्रीस्टहुड ऑफ अ टेम्पल और एक फ्रेंड साइंटिस्ट। मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज अ साइंटिस्ट। लेकिन सब डिफरेंस भले ही कितना बड़ा हो बेटा, बट देन दे ऑल आर जस्ट फ्रेंड्स। तो ये जो भी आपको समझाया गया है ये ओवरऑल फ्रेंडशिप के ऊपर ही समझाया गया कि इन लोगों की फ्रेंडशिप कभी भी अफेक्ट नहीं हुई, ना तो रिलीजन से, ना तो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के होने से, ना ही डिफरेंट डिफरेंट एक करियर में जाने से, किसी भी चीज़ से इनकी फ्रेंडशिप कभी भी अफेक्ट नहीं हुई। फ्रेंडशिप हमेशा इनकी रही। देखिए आपको ऊपर एक फोटो भी दिखाई गई है। आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फॉर द टेम्पल टू द मैरिज साइट। अब देखिए यहाँ पे इनकी फैमिली क्या करती थी, आपको लेटर ऑन बताया जाएगा फर्दर पैराग्राफ्स में। ये मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ही फैमिली के बारे में बात की जा रही है। सो लेट्स सी कि आप आगे क्या लिखा हुआ है इस चैप्टर में in the next class. Okay beta, today only this much. So for today, thank you class.